بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل آباد کے زرخیز زرعی رقبے پر 30 برس میں 500 سے زائد کالونیاں بن گئیں۔ زرعی رقبہ پر کالونیوں کی تعمیر کے باعث زرعی اجناس کی پیداوار میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر محکمہ خوراک نے گندم خریداری کوٹا کم کر دیا۔ رپورٹ کریں گے رمضان مرزا۔ یہ ہے فیصل آباد، جو زراعت کے شعبے میں اپنا پیٹ پالنے کے علاوہ دیگر شہروں کی بھی کفالت کر رہا تھا، مگر 1990 کے بعد زرعی زمین پر 500 سے زائد کالونیاں بن گئیں۔ پابندی کے باوجود ڈیولپرز نے کراپ ایریا پر پلاٹس کاٹ لیے۔ زرعی رقبہ کالونیوں کی نظر ہونے سے گندم سمیت دیگر زرعی اجناس کی پیداوار میں کمی آئی ہے، جس سے آٹے کی قیمتیں قابو سے باہر رہتی ہیں۔ رمضان تو بعد ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ رمضان وچ آٹا چیزاں راشن سارا سستا ملیا، بعد رمضان تو بعد ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ پیداوار میں کمی کے باعث محکمہ خوراک نے فیصل آباد سے گندم خریداری کوٹا کم کر دیا ہے۔ ضلع بھر میں 14,90,000 بوری گندم کی بجائے صرف 11 لاکھ بوری خریدی جائے گی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن شفیق انجم کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ کالونیوں کے باعث ضلع قلت زدہ ہو چکا ہے۔ بارہا ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے، درخواستیں کی ہیں کہ فیصل آباد میں کیونکہ گندم کا زیر کاشت رقبہ کم ہو گیا ہے اور کسان دوسری فصلوں پر منتقل ہو گئے ہیں، اس لیے فیصل آباد کو بھی راولپنڈی ڈویژن اور لاہور ڈویژن کی طرح گندم کے کمی کا جو شکار، یعنی جس کو ہم ڈیفیسٹ ایریا کہتے ہیں، اس میں ڈالا جائے اس لسٹ میں، اور یہاں پہ جو دوسرے اضلاع سے گندم کی ایلوکیشن کی جائے۔ گزشتہ 2 سال سے ضلع میں گندم کا ہدف بھی پورا نہیں ہو رہا۔ زرخیز زرعی زمینوں پر دھڑا دھڑ کالونیاں بنتی گئیں تو وہ وقت دور نہیں کہ گندم سمیت دیگر اجناس کی بھی قلت پیدا ہو جائے گی۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ پنجاب بھر سے 96 ٹاؤن کمیٹیز کو ختم کر کے تحصیل کونسل میں ضم کر دیا گیا۔ 30,000 سے کم آبادی والی ٹاؤن کمیٹیز کو تحصیل کونسل میں ضم کیا گیا۔ جنگ کی 2 اور فیصل آباد کی 3 ٹاؤن کمیٹیز تحصیل کونسل میں ضم کی گئیں۔ ٹاؤن کمیٹی روڈ، سلطان اور حسو بلیل کو تحصیل کونسل میں ضم کر دیا گیا۔ فیصل آباد کی ٹاؤن کمیٹی ستیانہ، گڑھ فتح شاہ اور روشن والا کو بھی ضم کر دیا گیا ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات کا شیڈیول جاری۔ میٹرک کے امتحانات کا 17 جون سے آغاز، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا امتحان 2 جولائی سے شروع ہوگا۔ میٹرک کا نتیجہ 30 اگست، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا رزلٹ 14 ستمبر کو آئے گا۔ اس سال پریکٹیکلز نہیں ہوں گے۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کا اجلاس میں تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میٹرک کا امتحان 17 جون سے شروع ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا امتحان 2 جولائی سے لیا جائے گا۔ پی وی سی سی کے مطابق نہم جماعت کا امتحان 27 جولائی سے لیا جائے گا۔ انٹر پارٹ 1 کا امتحان 11 اگست سے شروع ہوگا۔ اسی طرح میٹرک کا رزلٹ 30 اگست، انٹر پارٹ 2 کا رزلٹ 14 ستمبر کو جاری ہوگا، جبکہ نہم کا رزلٹ 29 اکتوبر، انٹر پارٹ 1 کا 14 نومبر کو جاری ہوگا۔ رواں سال پریکٹیکلز نہیں لیے جائیں گے، جبکہ دونوں جماعتوں کے بچوں کو بغیر امتحان کسی صورت پاس نہیں کیا جائے گا۔ پریکٹیکلز کے 50% نمبر تمام اسٹوڈنٹس کو مل جائیں گے، بقیہ 50% پارٹ سیکنڈ میں تھیوری کے مارکس کی اوسط کے حوالے سے ملیں گے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے حاصل کردہ نمبرز ہی پارٹ فرسٹ کے نمبرز تصور کیے جائیں گے۔ اور نجی میڈیکل کالجز کی بھاری بھرکم فیسیں، فیصل آباد میں طلباء اور والدین کا اضافی فیسوں کی ڈیمانڈ کے خلاف کینال روڈ پر احتجاج۔ 4th ایئر کے طلباء نے آن لائن کلاسز جلد شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں مستقبل کے ڈاکٹر سڑکوں پر آ گئے۔ کینال روڈ پر قائم نجی میڈیکل کالج نے 4th ایئر کے طلباء کو بقایا جات کی مد میں 10 لاکھ روپے تک کی فیسیں جمع کروانے کا کہا تو طلباء اور والدین سراپا احتجاج بن گئے۔ انہوں نے اضافی فیسوں کی ڈیمانڈ کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ہم لوگ اپنے اس سال کی جو فیس ہے وہ دے چکے ہیں، لیکن ہماری آن لائن کلاسز سٹارٹ نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا سلیبس کم ہو رہا ہے، ہماری اٹینڈنس شارٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اینڈ پہ کہ ہمارے داخلے روکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس سال کی فیس دے چکے ہیں، جو ہمارے فیلوز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، ان کی سپلیز ہیں، ان کا ایڈمیشن نہیں بھیج رہے، ان بچوں کا سال ضائع ہوگا۔ ہمارا 5 سال کا کورس ہے، ان کا وہ اس میں کور ہی نہیں ہوگا۔ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ہم سے فیس لی ہے، جو انڈسپیوٹڈ ہے، اس کے مطابق تو ہماری کلاسیں شروع کروائیں تاکہ ہمارا کسی قسم کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزماں بٹ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی رائے عابد، ضلعی سیکرٹری اطلاعات عثمان حفیظ، ایکشن کمیٹی والدین رانا طارق سرور، رانا خالد، ڈاکٹر غلام سرور، ڈاکٹر ظفر، محمد فاروق، شکیل اور دیگر والدین نے بھی طلباء کی آن لائن کلاسز جلد شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔
पूरे पंजाब के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी रूटीन की फ़ीसें लेकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं, लेकिन ये वाहिद अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज है जिन्होंने फ़ीसेस भी ले ली हैं और अब एक्स्ट्रा फ़ीसेस लेने की शर्त के साथ वो कहते हैं जी कि अगर आप ये फ़ीस देंगे तो हम आपकी ऑनलाइन क्लास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक कॉलेज है और ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह बच्चों को ब्लैकमेल करना और बच्चों को तालीम के हक से महरूम करना। इन्होंने 2018 से हमसे एक्स्ट्रा फीस मांगनी शुरू कर दी, उस पर हम लोग कोर्ट में चले गए और वो मामला तभी कोर्ट में है। जब मामला कोर्ट में गए तो हमने बैठ के इन्होंने कहा जी कि रूटीन की फ़ीस आप देते रहें, तो रूटीन के बच्चे पढ़ते भी रहें। बच्चों ने सेकेंड ईयर भी पास किया, थर्ड ईयर भी पास किया, हमने रूटीन की फ़ीस भी इनको दी। अब फोर्थ ईयर की फ़ीस हमने इनको दिसंबर में पे कर दी। अब ये हमें कहते हैं जी ऑनलाइन क्लासेस हम उस वक्त शुरू करेंगे जब आप हमें 10-10 लाख रुपया और जमा करवाएंगे। हमने इन्हें कहा जी वो मामला कोर्ट में है, जब कोर्ट डिसाइड करेगी तो कर लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। प्रिंसिपल निजी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नूर अकबर सियाल का कहना है कि फीसें रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तय की हैं। कोई भी निजी कॉलेज मुफ्त में नहीं पढ़ा सकता। वालिदैन एहतजाज की बजाय अदारे के वाजिबात अदा करें ताकि बच्चों का नुकसान न हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एजुकेशन है वो बगैर फ़ी के नहीं है, एडमिशन बगैर फ़ी के नहीं है, एग्जामिनेशन बगैर फ़ी के नहीं है, बच्चों की रजिस्ट्रेशन यूएस में बगैर फ़ी के नहीं है, पीएमडीसी में नहीं है। इनके हाउस जॉब के लिए जो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है वो ज़रूरी है। सब के लिए जो फ़ी है वो कंपलसरी है, ये पेरेंट्स ने देनी है। अगर पेरेंट्स नहीं पे कर रहे वो अपने बच्चों का कीमती साल ज़ाय कर रहे हैं। अपील करूँगा पेरेंट्स से कि वो अपनी फ़ीसें अदा करें और अगर होता है उनके हक में होता है तो हम उनकी फीसें वापस करने के तैयार हैं। उधर वालिदैन एक्शन कमेटी ने पुरानी फीसें बरकरार रखने के लिए अदालत से भी रुजू कर रखा है। वालिदैन कहते हैं फैसला आने तक तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस से महरूम न किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के वार न थमे, डिवीजन में 9 मरीज जाँ बहक, 104 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 8 मरीज जाँ बहक, 68 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जंग में 1 मरीज जाँ बहक, मजीद 16 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। चिन्योट में 24 घंटों में 2 केस रिपोर्ट। टोबा में मजीद 18 मरीज रिपोर्ट हुए। आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस के वार रुक न सके, डिवीजन में 9 मरीज जाँ बहक हो गए। और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा में दौरान ड्यूटी कोरोना वैक्सीन सेंटर बंद और अमले के गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एमएस से वजाहत तलब। उधर चिन्योट में मजीद 3 वैक्सीन सेंटर्स बना दिए गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा में कोरोना वैक्सीन सेंटर शाम के औकात में बंद होने और अमले के गैर हाजिर होने का इंकिशाफ हुआ है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा को नोटिस जारी कर दिया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की जानिब से रिपोर्ट मौसूल हुई है। गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ईद के बाद जितने भी सीवीसीज हैं, जो सिटीज़न वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वो 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक फंक्शनल हो जाएंगे और जितने भी लोग शेड्यूल्ड आएंगे उनको वैक्सीनेशन करेंगे। कोरोना वैक्सीन सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक फाल रहने की हिदायत की गई है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा का कोरोना सेंटर बंद और एमएस समेत दीगर अमला गैर हाजिर था। एमएस की नाअहली पर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाएंगे। हमने अपनी सारी टीमों को सेंसिटाइज भी कर दिया गया था। उसके बावजूद जो एमएस चक झुमरा है वो ही रिमेंड एब्सेंट और डायरेक्टर साहब ने मुझे उसकी एब्सेंट रिपोर्ट की है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट को हम उसके एक्शन के लिए रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट में 3 नए वैक्सीन सेंटर्स बना दिए गए हैं, जिससे मजमूई तौर पर जिला भर में 7 वैक्सीन सेंटर्स कायम हैं। अब तक सेंटर्स पर 31,300 से ज्यादा अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। टीचिंग अस्पतालों में बंद शोबाजात में मजीद 23 मई तक तौसील। टीचिंग अस्पतालों में ENT, अमराज चश्म, अमराज जिल्द और दांतों के शोबों को बंद किया गया था, जबकि इन शोबों में होने वाली सर्जरियां भी रोक दी गई थी। टीचिंग अस्पतालों को नाक, कान, गला, अमराज चश्म, अमराज जिल्द और दांतों के शोबों को बंद करने के अहकाम दिए गए थे, जबकि इन शोबों में होने वाली सर्जरियां भी रोक दी गई थी। महकमा सेहत के इस हुक्मनामे में 23 मई तक की तौसीह कर दी गई है। मुंतखब करदा शोबा इमराज को खोलने से मुतालिक फैसला 23 मई को कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र किया जाएगा। इन शोबाजात में तैनात अमले को कोरोना से मुतासरा मरीजों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मजदूरों का शहर चिन्योट सोशल सिक्योरिटी अस्पताल से महरूम। 1.5 लाख से ज्यादा मजदूर ताहाल जिले में
सोशल सिक्योरिटी अस्पताल न होने से शदीद परेशान हैं। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट को जिला का दर्जा मिले 11 साल बीत गए, ताहम मजदूरों का शहर चिन्योट सोशल सिक्योरिटी अस्पताल से ताहाल महरूम है। मजदूरों की रजिस्टर्ड तंजीमों के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा मजदूरों पर मुश्तमिल शहर में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, जबकि फर्नीचर, भट्टा खश्त और दीगर इंडस्ट्रीज से वाबस्ता मजदूर तनख्वाहों की अदम अदायगी, उजरत पूरी न मिलने समेत तिब्बी सहूलियात की फराहमी न होने से परेशान है। हम मुतालबा करते हैं और ये गरीब आदमी है, ना इनको मजदूरी मिलती है, ना इनका कोई बच्चा और कोई अभी भी बीमार हो जाए तो इलाज के लिए कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होता, इनके पास पैसे नहीं होते, दिहाड़ी नहीं लगती इनकी, और ये इतने मजबूर हो गए हैं, इलाज भी नहीं करवा सकते अपने। 1.5 लाख मजदूर है जी, रिक्शा ड्राइवर, फर्नीचर वाले और मिस्त्री वगैरह। सिक्योरिटी बनाई जाए, हॉस्पिटल मेहरबानी की जाए। मजदूरों का कहना था हुकूमत सरकारी तनख्वाह पर अमल दरामद करवा रही है और ना ही तब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। तिब्बी सहूलियात की फराहमी से महरूम मजदूरों ने इंसाफ हुकूमत से जिला में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जबकि चिन्योट में माह सयाम के बाद फिर से चीनी का काल पड़ गया। ओपन मार्केट में चीनी के ब्लैक और महंगे दामों में फरोख्त का इंकशाफ हुआ। जिले इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली कहें या अदम तवज्जी, चिन्योट में हुकूमती अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया। सस्ती चीनी खरीदारों के लिए ख्वाब बन गई है। चीनी के ओपन मार्केट में काल पड़ गया। खरीदारों का कहना है कि मार्केट में सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं और महंगे दामों ब्लैक में चीनी खरीदना पड़ रही है। सरकारी रेट पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों ने मजीद कहा, चीनी 85 की बजाय 100 तो कहीं 100 से भी कीमत तजावज कर गई है। कारोबार तो है नहीं है, हुकूमत ने ये लॉकडाउन किया हुआ, कारोबार बंद किए हुए हैं, गरीब आदमी तो फारग है और ऊपर से महंगाई का तूफान है। चिकन 500 रुपए किलो मिल रहा है, 550 रुपए किलो मिल रहा है। हुकूमत की इस तरफ तवज्जो है ही नहीं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने और सस्ती चीनी की फराहमी का मुतालबा करते हुए सरकारी रेट पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बताते हैं असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी असद अली का दुनियापुर तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खुरम शहजाद भट्टी को भवाना तैनात कर दिया गया। सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुरम शहजाद भट्टी इससे पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर भवाना रह चुके हैं। जंग से आपको बता रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी असद अली का दुनियापुर तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खुरम शहजाद भट्टी को भवाना तैनात कर दिया गया। सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि खुरम शहजाद भट्टी इससे पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर भवाना रह चुके हैं। महकमा माहौलियात फैसलाबाद की पतली हालत और माहौलियाती आलूदगी का मामला, आलूदगी रोकने के लिए सरगर्मियां महकमे के लिए दर्द सर बन गई। सिर्फ 5 इंस्पेक्टर्स, एक ही गाड़ी, किसको चेक करें और किसको छोड़ें, कार्रवाइयां कौन करेगा? रिपोर्ट करेंगे रमजान मिर्जा। शहर फैसलाबाद में एक अंदाजे के मुताबिक 660 टेक्सटाइल यूनिट्स, 12 लोहे की भट्टियां, 450 भट्टे, 16,50,000 गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें मुतअद्दिद फैक्ट्रियां और हजारों गाड़ियां शहर के माहौल को तबाह करते हुए स्मोक का अंदेशा पैदा कर रही हैं। शहर में लाखों गाड़ियों और सैकड़ों सनती यूनिट्स चेक करने के लिए 5 इंस्पेक्टर्स और फील्ड असिस्टेंट्स की कमी है। महकमा में डिप्टी डायरेक्टर का कलमदान खाली, जबकि महकमे के पास सिर्फ एक गाड़ी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि इस मामले के हल के लिए इकदाम कर रहे हैं। शहरियों को खुद भी कोशिश करना होगी। कोविड में पूरी दुनिया में एक चीज़ ये देखने में आई थी कि एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी और ये फॉसिल फ्यूल्स जिनकी वजह से ये पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा सबब बनते हैं, ये इनको अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हमारी एयर क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जिस हद तक मुमकिन हो हम इंशाल्लाह उसमें अपना किरदार अदा करें। बिलखुसूस जो हमारे एनवायरनमेंट का महकमा है और एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, इनको हम पुश कर रहे हैं। आलूदगी को काबू करने के लिए अदारों और सनतकारों को जामिया हिकमत अमली बनाने की जरूरत है ताकि शहर की माहौलियाती शाइस्तगी बरकरार रह सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। उधर झंग की मेन शाहराहों से कचरे के ढेर खत्म न किए जा सके। सरगोदा रोड पर जगह जगह कचरे के ढेरों के बायस शहरी परेशान हो गए। वसीम अहमद रिपोर्ट करेंगे।
जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी जंग की मेन शाहराहों से कचरा खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकी। सरगोदा रोड पर जगह जगह कचरे के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद मर्तबा जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हालांकि सरगोदा रोड पर पहले कचरे के लिए कंटेनर्स रखे गए थे। सांस लेना मुश्किल हो चुका है यहाँ पर हमारे लिए। हम तो बार बार कह चुके हैं, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। अब भी इतने ढेर लगा हुआ है। एक हफ्ता ही सफाई हुई थी, फिर बाद में वही गंदगी हो गई है। डीसी साहब से गुजारिश है कि ये प्रॉपर तरीके से इसका चेक एंड बैलेंस किया जाए और जंग से रोडों से गंदगी का ढेर खत्म किया जाए। शहरियों का कहना है कि मौजूदा इंतजामिया ने कंटेनर्स उठवा दिए, जिसके बायस कचरा जगह जगह दिखाई देता है, जो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। उधर चिन्योट शहर का इकलौता हॉकी स्टेडियम हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। मैदान में लगी घास खुश्क होने लगी, मुतअद्दिद जगहों से कटाई हुई और ना ही सफाई, पोल्स भी टूट फूट का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर। चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस म्यूनिसिपल हॉकी स्टेडियम वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। शहर के इकलौते हॉकी स्टेडियम में लगा कोरियन घास खुश्क हो गया, जबकि सफाई सुथराई भी कई माह बाद न हो सकी। शहर के इकलौते हॉकी स्टेडियम की खस्ताहाली पर नौजवान खिलाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना है। बर वक्त घास की कटाई और आबियारी न होने पर कई माह से हॉकी स्टेडियम में खेलों की सरगर्मियां मानद पड़ गई। सियासी और समाजी रहनुमा सैयद नूरुल हसन शाह का कहना है कि हॉकी स्टेडियम की खस्ताहाली इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की सुस्ती, गफलत, लापरवाही की वजह से ये जो स्टेडियम है ये इंतहाई ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। पौधे सूख चुके हैं और जो इमारत हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। ना ही यहाँ चौकीदार है और ना ही यहाँ इसकी मुनासिब तरीके से बंदोबस्त किया जाता है। म्यूनिसिपल हॉकी स्टेडियम चिन्योट की खस्ताहाली को दूर करके घास की कटाई की जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां जारी रखी जा सके। म्यूनिसिपल हॉकी स्टेडियम अरसा दराज से खस्ताहाल हो चुका है। शहरियों और खिलाड़ियों ने मुतालबा किया है कि इस स्टेडियम की हालत को बेहतर किया जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां बहाल हो सके। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। जंग में रेलवे स्टेशन और फेस्को दफातर को जाने वाली शाहराह 10 साल गुजरने के बावजूद तामीर न हो सकी। सड़क पर पानी जमा रहने से घड़े पड़ गए। फेस्को मुलाजमीन समेत इलाका मकीन परेशान हैं। जंग में फेस्को का जिलाई हेडक्वार्टर भी रेलवे स्टेशन रोड पर वाक़या है। फेस्को दफातर में आने वाले सार्फिन हो या फिर रेलवे स्टेशन पर जाने वाले मुसाफिर, सबको इसी टूटी सड़क से गुजरना पड़ता है। 10 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारा पानी का मसला बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जब भी कोई गाड़ी या ट्रैफिक का लोग गुजरते हैं, पैदल लोग जो गुजरते हैं वो गंदे हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन रोड पर सीवरेज का निजाम भी दरहम भरम होकर रह गया है, जिसके बायस यहाँ पर पानी का जमा रहना मामूल बन चुका है। सड़क पर गहरे गड्ढे हादसात में इजाफे का सबब बनने लगे हैं। सीवरेज का पानी 10 साल से बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कभी डला ही नहीं। यहाँ सीवरेज मुकम्मल बंद है और ना होने के बराबर है, और सड़क जो है वो मुकम्मल ही तबाह हाल है। रेलवे स्टेशन रोड की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार है। मट्टी के बादल, गहरे गड्ढे और सीवरेज का पानी रेलवे रोड की पहचान बन चुका है। इलाका मकीन अजियत का शिकार हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में 9 साल से कायम सरकारी स्कूल महकमा तालीम के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक 228 गाफ बे को ऑनलाइन करने के लिए EMIS कोड जारी ही नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत की स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 2209 सरकारी स्कूल्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन दस्तयाब है, लेकिन तहसील सदर में एक स्कूल 9 साल से मौजूद तो है, लेकिन महकमा तालीम के ऑनलाइन रिकॉर्ड में इसका नाम और निशान तक नहीं। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन करने के लिए EMIS कोड जारी किया गया, लेकिन 2012 में कायम हुए गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 228 गाफे बोगनी को ताहाल कोड जारी नहीं किया गया, जिसके बाद सीटें मंजूर हुई, न ही स्कूल को नॉन सैलरी बजट जारी हो सका। यहाँ 4 टीचर्स और 100 से ज्यादा तलबा दाखिल हैं, जबकि ऑनलाइन न होने पर कोई टीचर ट्रांसफर भी नहीं करवा सकती। इलाका मकीनों की निशानदही पर CEO एजुकेशन ने सेकेंडरी स्कूल्स को दरख्वास्त भिजवा दी, जिसमें मुतल्लिका स्कूल को करीबी हाई स्कूल में जम करने या नया कोड जारी करने की दरख्वास्त की गई है। डायरेक्टर जनरल नर्सिंग सर्विसेज पंजाब का महकमा सेहत और पंजाब भर के अस्पतालों की इंतजामिया को मुरासला, अस्पतालों और मराकज़ सेहत में नाइट ड्यूटी पर तैनात खवातीन मुलाजमीन को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी।
DG नर्सिंग सर्विसेज के मुरासले में कहा गया है कि अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर ड्यूटी करने वाली खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी का अहतमाम किया जाए। खास तौर पर नाइट ड्यूटी करने वाली खवातीन मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए ताकि हरासानी के वाक़यात रोके जा सकें। डायरेक्टर जनरल नर्सिंग सर्विसेज के मुरासले में कहा गया है कि हरासानी के वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर तैनात खवातीन स्टाफ के बिला खौफ व ख़तर काम करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। गुज़िश्ता साल की तरह रवा साल भी जिला भर के टॉप 10 पुलिस स्टेशन में जराइम कम नहीं हो सके। इश्तिहारी गिरफ्तार करने की फैसलाबाद पुलिस की मुहिम भी मांद पड़ने लगी। तैयब मकबूल रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के टॉप 10 थानों में जराइम कम न हो सका। पुलिस की इश्तिहारी और अदालती मफरूरों को गिरफ्तार करने की मुहिम भी मांद पड़ने लगी है। थाना गुलाम अहमदाबाद रवां साल 858 मुकदमात का अंदराज करके पहले नंबर पर रहा। पीपल्स कॉलोनी 828 के साथ दूसरे और मदीना टाउन 825 के साथ तीसरे नंबर पर है। बटाला कॉलोनी 802 के साथ चौथे और थाना मिल्लत टाउन 755 के साथ 5वें नंबर पर रहा है। थाना सरगोदा रोड, सदर, मंसूराबाद, फैक्ट्री एरिया और गुलबर्ग बिलतरतीब 6, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर हैं। जबकि फैसलाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता साल के निस्बत 40% कम इश्तिहारी और 90% कम अदालती मफरूर गिरफ्तार किए। यही इश्तिहारी और अदालती मफरूर जराइम में इजाफा का सबब बन रहे हैं। तर्जमान जिला पुलिस मुनीब हसन का कहना था कि इन 10 थानों के एरियाज में आबादी ज्यादा होने से दीगर थानों के निस्बत ज्यादा क्राइम है। हर साल जो आबादी का तनासब है वो बढ़ता है, पूरी दुनिया में बढ़ता है, यहाँ पे भी आबादी का तनासब बढ़ रहा है। उस वजह से अगर देखा जाए आबादी के जितनी तनासब से आबादी बढ़ रही है, उस आबादी से उस शरह से जो क्राइम है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। उसको हम रिड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए नाका जात का निज़ाम, पेट्रोलिंग का निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। और CPO साहब की हदायत पर जो SHO साहबान हैं वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स थानों में मौजूद होते हैं, अपने वो पेट्रोलिंग का निज़ाम को मौसर बनाते हैं और क्राइम को रिड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई सालों से जराइम के हवाले से टॉप 10 रहने वाले इन 10 थानों में मरबूत लहा अमल और ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत है ताकि शहरी इन इलाकों में वारदातों से महफूज रह सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। और निज़ाम में शफाफियत, टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। FBR दफातर में केसेस की बिलमशाफा समात पर मरहलावार पाबंदी लगा दी। टैक्स गुजार अपने घर या दफातर से ही ऑनलाइन तहकीकात का हिस्सा बन सकेंगे। पाबंदी का इतलाक 1 जून से होगा। ECC ने सनतकारों को RLNG की मद में गैस पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। 1 मई से 16 मई तक एक्सपोर्टर्स को दोनों हाथों से लूटा गया। फीकस कंटेनर का किराया 75,000 तक वसूल किया गया। ECC ने सनतकारों को RLNG की मद में गैस पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सब्सिडी के बाद सनतकारों को गैस $6.5 फी MMBTU मिल रही थी। फैसलाबाद के सनतकारों ने इस पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। ये टेक्निकली एक साजिश है। साजिश ये है कि हमारा थोड़ा सा सांस निकलने लगा है, ये हमारे थोड़ा सा इंडस्ट्री का सांस बहाल हुआ है, तो फौरी तौर पे अब एनर्जी वालों को भी होश आ गई है। बाकी मिनिस्ट्रियां अपना काम पूरा नहीं कर सकी, तो उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इनकी भी टांगें खींच दें ताकि सारे बराबर हो जाए। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स के हाथों एक्सपोर्टर्स लूटने लगे। फैसलाबाद से कराची के लिए कंटेनर्स के किराए में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। 20 से 25,000 वाला कंटेनर्स 75,000 से 1 लाख रुपए में बुक होता रहा। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। लेकिन जब ईद आती है, कोई स्पेशल इवेंट आता है, ट्रांसपोर्टर माफिया सरगर्म हो जाता है और इस दफ़ा 1 लाख रुपए तक ये कराया गया है। और एक्सपोर्टर्स की चूंकि मजबूरी थी, उन्होंने वेसल कैच करना था, उन्होंने ये पे किया है। तो मैं ये कहता हूं कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कहाँ हैं कि जो इस ट्रांसपोर्टर्स को इनको चेक करें, और जो ये करोड़ों रुपया हमारी एसोसिएशन से 100 से ज़्यादा मेंबर्स ने ये ज़्यादा पे करके कंटेनर्स लगवाए हैं। टोबा टेक्सिंग में नेशनल लेबर फेडरेशन की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने हुकूमत से फ़लस्तीनियों के हवाले से बड़े इक़दाम करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग में नेशनल लेबर फेडरेशन की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में मरकजी सदर नेशनल लेबर फेडरेशन शमसुर रहमान सवाती ने ख़ुसूसी शिरकत की। इसके अलावा शहरियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली सिविल लाइन से शुरू हुई और मुख्तलिफ मुकामात से होती हुई शहबाज चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था कि हुकूमत इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम को रोकने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो जुर्रतमंदाना इक़दाम लें कि आज अगर किबला अव्वल को नहीं बचाया आपने, तो फिर आप
बैतुल्लाह को और मस्जिद नबी को नहीं बचा सकेंगे। मुकामी शुरका का मजीद कहना था कि किबला अव्वल में नमाजियों पर हमला किया गया, जबकि कई रोज से निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। हम सबसे पहले तो अपनी आवाम से ये मुतालबा करेंगे कि जो भी गैर ममालिक की अशिया इधर फरोख्त होती हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए, और दूसरे नंबर पर हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल के खिलाफ फेल फौर जहाद का ऐलान करें। दूसरी जानब फैसलाबाद में भी मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने जिला कौंसिल चौक पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान जो हैं यकजा हैं और हम किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रोज इसराइली प्रोडक्ट खरीदते हैं और उन्हीं पैसों से वो बम खरीद कर, उन्हीं पैसों से वो हमारे पास हमें सूद का पैसा देते हैं, हमें गुलाम करते हैं, उन्हीं पैसों से वो फलस्तीन पर जुल्म करते हैं। हमें ये तहरीक चलानी होगी और तमाम प्रोडक्ट का बाइकाट करना होगा। जल्दी से जल्दी बमबारी बंद की जाए और जो है ना जितने भी फिलिस्तीन जख्मी है उनका बाहर के मुल्कों में अक़वाम मुत्तहिदा बंदोबस्त करे कि उनका इलाज करवाया जाए। मासूम बच्चों का, औरतों का जो उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसको फौरी बंद किया जाए। रैली के शुरका का कहना था कि ज़बानी मुजाहरों से कुछ नहीं होगा, हमें अमली तौर पर इक़दाम करना होगा। हमें यूरोप की तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकाट भी किया जाए। तोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बढ़ते रश के पेश नज़र अस्पताल में भी सेंटर कायम कर दिया। डिप्टी कमिश्नर तोबा टेक सिंह उमर जावेद शहरियों को सेहत सहूलियात की तेज़ तरीन फराहमी के लिए मुतहरिक। इसी तनाजुर में उन्होंने DHQ अस्पताल का दौरा किया। कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले अस्पताल में सेंटर भी कायम कर दिया गया। DC ने सिटिंग एरिया समेत वैक्सीन स्टॉक और हंगामी इकदामात को चेक किया। उनका कहना था कि ज़िले के तमाम वैक्सीन सेंटर्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वैक्सीन की मुतवातिर सप्लाई जारी है। DC ऑफिस में रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजार में ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले ACs और सुपरवाइजर्स में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए। DC ऑफिस में रमजान मुबारक में सस्ते रमजान बाजार में ड्यूटियां सर अंजाम देने वालों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में AC, सुपरवाइजर समेत डिस्ट्रिक्ट भर से रमजान बाजार में ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले अफसरान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने तारीफी इसनाद तकसीम की।